کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر معاذ اللہ انہوں نے سزائیں دی اور کس قدر الفاظ بولے، وردائے مبارکش ناز دوشش ربودان، ان کے کندھے سے چادر بھی اتار لی، قدموں سے مسلح بھی کھینچ لیا اور کہنے لگے کہ یہ مثل پدرش کافر شد، معاذ اللہ باپ کتنا کافر ہو گیا ہے۔ 252 اور 253 صفحے پر یہ دونوں روایات جو ہے یہ تمہارے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اور موجود ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس سے اگلے کرتوت بھی ہیں۔ جس وقت کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 540 اس پہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ کشف الغمہ ان کے مذہب کی بڑی کتاب، اہل بیت کے ساتھ پیار کا انداز دیکھو کیسا پیار کرتے ہیں۔ کہنے لگے ما ترونہ یرید بما قال قالوا نظن انہ یرید ان یصالح معاویہ، آپس میں میٹنگ کرتے کہنے لگتا ہے کہ حضرت معاویہ سے یہ صلح کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ اور کیا ان کو حکومت دینا چاہتے ہیں۔ فقالوا کہنے لگے کافر واللہ الرجل، کہ یہ کافر ہو گئے، معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ پھر خیمے پہ حملہ کر دیا، فانتہوا حتی اخذوا مسلحہ من تحتہ، نیچے قدموں سے مسلح بھی کھینچ لیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکے دیے اور اتنا تشدد کیا کہ دوسرے مقام پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ان لوگوں نے حملے کیے خنجر تک مارا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی خنجر جس وقت آپ زخموں میں تھے اس وقت بتا رہے تھے۔ یہ صفحہ نمبر اسی جلال العیون کا تمہارے سامنے 261 صفحہ ہے، میری کتاب نہیں، کتاب ان کے مذہب کی، چھوٹی نہیں بڑی کتاب۔ محبت اہل بیت کے دعوے کرنے والے سنے کیا کچھ کیا اہل بیت کے ساتھ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چو خنجر بر امام حسن زدند، جب ان شیعوں نے امام حسن کو خنجر مارا، حضرت رفت حضرت درد و علم بود، حضرت امام حسن کو درد بھی تھا علم بھی تھا۔ گفت چھ مسلط میدانی، ایک راوی آ کے کہنے لگا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسلط کیا جانتے ہو؟ مردم متحیرن دری کار، یہ جو تم نے سنو کیا حضرت امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بندوں کو، یعنی ہماری جو شیعوں کی پارٹیاں، ہمیں بڑی حیرانگی ہے کہ تم نے یہ کام ایسا کیوں کیا۔ شیعہ شکایت کرنے جب آیا، حضرت امام حسن کے خنجر لگے ہوئے زخم سے خون بہ رہا تھا، آپ نے زخم دکھا کے فرمایا کتاب ان کی ہے، صفحہ یہ تمہارے سامنے ہے۔ کہنے لگے حضرت امام حسن بخدا سوگند، مجھے رب کی قسم۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اپنے امام کا زور سے نام لو، کس نے کہا؟ 10 نام 10 دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے لیے کریں اور امام حسن کا سال میں نام نہ لیں۔ اب بھی وہ ویر ہے کہ سنو کیوں کی تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس شیعہ کو کہنے لگے جس نے کہا بندے پریشان بڑے ہیں تمہارے فیصلے پر، فرمایا میرا خنجر کا زخم دیکھو، باخدا سوگند، مجھے رب کی قسم کہ معاویہ از برائے من بہتر عظیم جماعت، فرمایا ان شیعوں سے مجھے معاویہ اچھا لگتا ہے کہ معاویہ از برائے من، حضرت معاویہ از برائے من میرے لیے بہتر اس کیا ہے؟ بہتر 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 ہے کس سے؟ عظیم جماعت، اس جماعت سے۔ کون سی جماعت؟ اہل سنت نہیں، آگے امام خود بیان کرتے ہیں، تھوڑا سا حوصلہ کرو بتاتے ہیں کیا فرمائے؟ دعویٰ می کنند کے شیعہ ہستن، فرمایا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے شیعہ ہیں، وہ ارادہ قتل من کردن، اور مجھے قتل کرنے والے ہیں۔
इमाम हसन कहने लगे दावा 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 नीकुनन के शिया हस्तन के दावा करते हैं कि हम शिया हैं, वह इरादा कत्ले मन करदम, सिर्फ थोड़ा जख्मी नहीं करना चाहते थे, ये तो खंजर मार के मुझे कत्ल करना चाहते थे। इरादा कत्ले मन करदम, इन्होंने मेरे कत्ल करने का इरादा किया। इनके बारे में किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? मुस्लिम उम्मत, शहजादा रसूल, जिगर गोशा बतूल, हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि सिर्फ मुंह के दावे करते हैं मोहब्बतों के, इनसे बड़ा कोई दुश्मन हो सकता है जो मुझे कत्ल करने लगे हैं। फरमाया निकल जा बाहर, मुझे तुम सबसे मुआविया अच्छा लगता है। मेरे भाइयों, चूंकि टाइम थोड़ा है, जज्बात तुम्हारे बड़े हैं, ये था हजरत इमाम हसन का रद्द अमल कि हमसे मोहब्बत के दावेदार कितने पानी में है, उनकी हकीकत क्या है। आओ करबला के इमाम हुसैन से पूछो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अभी वो सारी तफसील मैं जाके बाद में बयान करूंगा, पहले सिर्फ यहां पे तफसील पड़ी है लवानी और तंजील और जलालुद्दीन, वो तब अभी बाद में आता है यजीद वाला कि खत किसने लिखे, किसने बुलाया। उस आखिरी वक्त जब खैमे जल गए, जब हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जवानी पर तीर बरस गए, जब औला मोहम्मद के बाजू कलम हो गए, जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बदन पर 30 जख्म लग गए और कातिल खैमा अहले बैत और इमाम हसन के दरमियान हायल हो गए। मस्तूरात एक तरफ, हजरत इमाम हुसैन दूसरी तरफ, और दरमियान में कातिल। मेरे इमाम की जुबान से लफ्ज क्या निकले? किन लोगों को बदबख्त कहा, किन लोगों की एफआईआर काटी, किन लोगों का जुर्म बयान किया, किन लोगों के हवाले से बात की। ये लवानी और तंजील, ये छोटी सी किताब नहीं, तुम्हारे सामने है, इसके अंदर ये लिखा है और सफा 91 है। कहते हैं सुम्हाला बैना व बैना रहली व हरमिही, फिर वो दुश्मन हायल हो गया आपके कजावे हरम और आपके दरमियान। फसाहल हुसैन, इमाम हुसैन जोर से बोले, कातिलों को खिताब करते हुए क्या कहा? गाली क्या दी? गाली नहीं, झुड़की क्या दी? ये लफ्ज वैलकुम, ओ तुम तबाह हो जाओ, या शियत शैतान, ऐ शैतान के शियो, मुझे खत लिख के मारते हो। या शियत शैतान, तुम तो शैतान के चेले हो, मेरे बेटों को शहीद कर दिया, मेरे घर को आग लगा दी। या शियत शैतान, मुश्किल वक्त जब वो चढ़ गए, छाती के करीब पहुंचे, खैमा जब जलने लगा, हजरत इमाम हुसैन ने इन कातिलों को जब करीब से पहचाना, एफआईआर काटी। किताब इनकी है लवामी और तंजील, ये जिल्द इसकी सूरह यूसुफ की तफसीर वाली जिल्द नंबर 13 है। ये नहीं कहा है सुनियो मुझसे क्या कर रहे हो, कहा या शियत शैतान, ऐ शैतान के शियो, शर्म नहीं आई? हमारी मोहब्बत के नारे लगाते हो और हमें बेतीर चलाते हो। या शियत शैतान, ये लफ्ज इस किताब में मौजूद है और एक इमाम ने नहीं, हर इमाम ने इनके राज खोले हैं और बताए हैं। पूछो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, पूछो इमाम मूसा कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, पूछो इमाम जाफर सादिक से क्या कहते हैं। रिजाले कशी है, जिल्द नंबर 2 है। मेरे इमाम जाफर सादिक
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम। ये किताब उनकी, हम नहीं कहते कि इसमें सच लिखा है, मगर वो कहते हैं हमने सच्ची लिखी है, और लफ्ज लफ्ज को इमाम की तालीम कहते हैं। लेकिन हकीकत के लिहाज से चूंकि जो हकीकत है इसमें आ जाए कि हम उसको सच ही कहेंगे, इस बुनियाद पर इनकार नहीं करेंगे कि इन्होंने चूंकि लिखा है। ये बात हम भी कहते हैं सच है, ये भी कहते हैं सच है। वो बात है क्या? हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल 599 सफा रिजाले कशी का, उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद जिसमें यह लिखा है, काल अबुल हसन कहने लगे, काल अबू अब्दुल्लाह के इमाम अबू अब्दुल्लाह इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, मा अंज़लल्लाहु सुब्हानहु आयतन फिल मुनाफिकीन, अल्लाह ने कुरान में जितनी आयतें मुनाफिकों के बारे में नाजिल की है, वो अल्लाह याद रखो, वहिया फी मई यंतशिहु तशय्यो, फरमा मुनाफिकों की सारी आयतें शियों के बारे में है। रिजाले कशी जल्द नंबर 2, हवाला तुम्हारे सामने, याद करना तुम्हारा काम, मेरा फतवा नहीं, इमाम जाफर सादिक का फतवा है। तफसीर है, कहते हैं जितनी भी आयतें कुरान की है, फिर सुन लो इबारत, मा अंज़लल्लाहु सुब्हानहु आयतन फिल मुनाफिकीन इल्ला वहिया फी मई यंतहिलु तशय्यो, यंतहिलु का मतलब है जो मंसूब है किसकी तरफ? तशय्यो की तरफ, शिया होने की तरफ। इमाम कहते हैं इतनी मुनाफिकत है, इतनी बार इन्होंने हमसे धोखा किया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर आगे पूरी इमामों की लिस्ट है जो सारे लोगों को तारुफ करवा रहे हैं कि इनके पीछे लग के ये बदबातन उस अब्दुल्ला बिन सबा के मजहब को लेकर चले हैं, मोहब्बत अहले बैत को सिर्फ शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिनकी मोहब्बत का नारा लगाते हैं उनमें सारे का नाम मैंने तुम्हारे सामने अपनी किताबों से नहीं, इनकी किताबों से पेश किया। सूरज मगरब से तुल हो सकता है, इन बातों का कोई जवाब नहीं दे सकता। काट के बयान नहीं की, अव्वल आखिर छोड़ के बयान नहीं की, बात पूरी की पूरी जो मौजू के मुताबिक लिखी हुई है वो बयान कर रहा हूं। और इसमें इन्होंने इस चीज को वाज़ेह कर दिया, पूछ लो हजरत इमाम मूसा काजिम से, और बताऊं कहां से, जिसको कहते हमारी उसूल काफी है। उसूल काफी मैंने अगले प्रोग्राम में एक हवाला पेश किया और मुल्ला बाकर मजलिसी को छोड़ के भाग गया वक्त आने पर। गुजरांवाला में हमने गैर मुकल्लिदों से मुनाजरा किया, वो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसमें मुनाजिर को बवासीर हो गई थी और बार बार टैलेंट से उसको बरामद किया गया। उस दिन इब्ने अब्दुल वहाब के नाम को छोड़ गए, कहते हमारा कुछ नहीं लगता, गुमराह है, ये है वो है, छोड़ दो। इस्माइल देलवी को हम कुछ नहीं मानते, गुमराह था, ये था। आज बारी इनकी आई है और इसमें ये देखे उसूल काफी कहता है तुमने हयातुल कुलूब की बात की, वो हमसी किताब है, हमारी तो उसूल काफी है। उसूल काफी ये जिल्द बिल्कुल साफी पहली जिल्द मेरे सामने है, ये 286 सफा, इसमें मेरे इमाम का कौल है, मेरे इमाम का कौल है। मैं दावे से कह सकता हूं इस मजमा में कि जितनी बार मैंने इमाम मूसा काज़िम के दरबार पे हाजिरी दी है, इतनी पूरे मजमे में से किसी ने नहीं दी होगी। इमाम मूसा काज़िम वो दिजला के किनारे के पार, वो काज़मिया में चमकता इमाम, वो जिस्रुल अइम्मा के साथ जिनका मज़ार, वो इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं, जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 265 है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है और 286 पर भी इस बात की वजाहत की गई है। क्या अंदाज है मेरे इमाम का? काला इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला गादिब अला शिया, फरमाया अल्लाह शियों से नाराज है। गादिबा का मतलब सिर्फ नाराज ही नहीं, थोड़ा गज़बनाक है। गाजिबा का मतलब बताऊं, गैरुल मग़दूबी अलैहिम में जो मग़दूब है। इमाम मूसा काज़िम कहते हैं कि जिन लोगों ने अपना नाम यह बना रखा मसलक का, ये अल्लाह के पसंदीदा लोग नहीं है। इन्नल्लाह गादिब अला शिया